आज धनतेरस के सुअवसर पर और धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी भेंट दी है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश में उसकी घोषणा करी है, उसका इनॉग्रेशन करा गया है, कई जगहों पे शिलान्यास करा गया है। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र भी एम्स न्यू दिल्ली के माध्यम से इन घोषणाओं का लाभार्थी रहा है। इसमें एक बहुत अहम घोषणा थी, आयुष्मान भारत में देश के सभी बड़े बुजुर्ग जो 70 बरस की आयु से ऊपर के हैं उनको भी आयुष्मान भारत में इस स्कीम में लाभार्थी बनाना। यहां तक कि इसका अब कोई इनकम से लेना देना नहीं होगा, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम हर व्यक्ति जो 70 साल से बड़ा है उसको इस स्कीम में लाभार्थी बनाया जाएगा। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार द्वेष की राजनीति करती है। उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं होने दिया है और इसीलिए इस भेंट से दिल्ली के बड़े बुजुर्ग वंचित रह गए हैं। हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है। जब से पवार साहब 1967 में पहली बार जब चुनाव लड़े थे तभी से मेरी दादा और दादी जी ने ये शुरू किया था और यही हमारे संस्कार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को यही तो लोकतंत्र की ताकत है। ये चाचा भतीजे का लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक एक हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पवार वर्सेस पवार है, ये एनसीपी महाराष्ट्र वर्सेस बीजेपी अदृश्य शक्ति है। ये लोकतंत्र है, जो मर्जी बोलो। People of Wayanad have shown the country the way. നിങ്ങള് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള വഴി. A massive campaign was unleashed against my brother to tarnish his reputation. Lots of money, lots of resources were poured into that campaign. എന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രതിച്ഛായ, എന്റെ സഹോദരന്റെ സത്പേര് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പൈസ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു പ്രചരണം തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായി. And there was a time when everybody was turning their back on him. ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരനോട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്ത, ലോകം മുഴുവൻ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. And that is when all of you, each one of you who voted for him, who supported him, who loved him, who gave him courage and affection, stood for what is right. ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ സഹോദരനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്ന സമയത്താണ് വയനാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, നിങ്ങളുടെ വോട്ട്, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം, നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയത്. What everybody is seeing today, you saw then. ഇന്ന് എന്റെ സഹോദരനിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ 5 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. Today the whole world recognizes that this one man is standing for the truth. He is fighting for the truth and he has the courage to keep fighting no matter what happens to him. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള ധൈര്യവും കരുത്തും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയനാട്ടുകാർ നിങ്ങളത് 5 വർഷം മുമ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. My sisters and brothers of Wayanad, you recognized this man and you recognized his fight much before everybody else did. എന്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ സഹോദരന്റെ ഈ മനുഷ്യന്റെ പോരാട്ടം, ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് വയനാട്ടുകാരായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. And you made a bond with him of love and trust and loyalty that is in his heart. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹത്തിന്റെ
വിശ്വാസത്തിന്റെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. He and all of us in his family are deeply, deeply grateful to you for what you did for him. देखिए, ये आज से लगभग 5-6 दिनों का जो त्यौहार का समय है शुरू हो गया है। आज पहले दिन धनतेरस का दिन रहेगा, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली, उसके बाद भाई दूज और ये छठ तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो देखिए, ये क्योंकि साल का महत्वपूर्ण त्यौहार है पूरे देश के लिए, इसमें बड़े पैमाने पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, साथ ही साथ जो घरेलू महिलाएं होती हैं, साथ ही साथ जो लोग होते हैं, इनका अपना धार्मिक मान्यता के हिसाब से वो चीज़ें मार्केट में निकलते हैं और धनतेरस के दिन जो है वो ज्वेलर मार्केट से ख़रीदारी करते हैं। इस त्यौहार को, पूरे त्यौहार को लेके हमने एक ग्रुप की तरह हम उसको देख रहे हैं, जिसमें 4-5 तरीके की हम लोगों ने व्यवस्थाएं करी हैं। पहले तो ज्वेलर्स मार्केट के ऊपर हमारी नज़र है कि वहाँ कोई अनहोनी या ऐसी घटना ना हो जाए, जिसके लिए पिकेटिंग की गई है। जो ज्वेलर्स हैं उनके साथ बैठक की गई है, उनको भी गार्ड्स लगाने के लिए कहा गया है, और जो पुराने जो इस तरह के अपराधी आए हैं उनके घर भी लगा, जिन्होंने इस तरह की घटनाएं कभी लूटपाट की है, उनके खिलाफ भी अभियान हमारा चल रहा है। दूसरा जो है, देखिए, ये पटाखा मार्केट भी इस समय महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार घटनाएं हो जाती हैं। तो लखनऊ में लगभग 54 जगह हम लोगों ने चिन्हित करके उनको लाइसेंस दे के दुकानें लगवाई हैं, लाइसेंसेस के आधार पे। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को कहा गया है कि कहीं अवैध रूप से ना संचालन हो। इसके तीसरी चीज़ जो है, देखिए, ट्रैफिक है। ट्रैफिक भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बाज़ारों में 4 पहिया गाड़ी की वजह से, मार्केट की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो लोगों को हमने ये अपील भी की है कि जब भी मार्केट जाएं तो पोलिंग के हिसाब से जाएं, और साथ ही साथ जो है छोटे मार्केट हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट हैं, उसमें अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएं। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियाँ हमने बढ़ाई हैं, कुछ हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्थाएं करवाई हैं इस दौरान जो है, तो जिससे कि पूरा शहर जो है सुचारू रूप से चल सके और किसी को परेशानी ना हो। इसके अलावा देखिए, जो पिछले कई दिनों से इस तरह की अफवाहें आती हैं कि कभी एयरलाइंस में बम रखने की, कभी होटल्स में बम रखने की। लखनऊ में भी अभी 2 दिन पहले इस तरह के ईमेल्स आए थे, जिसके आने प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने जो है सघन अभियान चलाया था BDDS टीम्स के साथ जो है, लेकिन वो खबरें गलत निकली। तो उस चीज़ को भी ट्रेस किया जा रहा है कि कहाँ से ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट हुई, किस ईमेल ID से, IP एड्रेस से आया है। तो वो चीज़ें भी हमारी नज़र में हैं। तो पूरी हमें उम्मीद है कि अब तक जैसे त्यौहार अच्छे निकले हैं, हमारे ये त्यौहार भी जो है बहुत अच्छी तरह से संपन्न, सकुशल, अच्छे और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होंगे। सर, दिवाली के शुभ अवसर को लेकर सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी, आज धनतेरस का पर्व है। इस बीच मोहन भागवत का महत्वपूर्ण बयान आया कि पटाखों से सिर्फ प्रदूषण नहीं होता है। इस बारे में सर काफी लंबी डिबेट भी चल रही थी, पटाखों को ही क्यों बैन किया जाता है, आप लोगों ने? माननीय सरसंघ चालक जी ने जो विषय उठाया है, हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये आदिकाल से है। प्रभु श्री राम के आगमन पर पूरा देश प्रसन्नचित होकर उल्लास के साथ उनका स्वागत करता है। ये आज से नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन डस्ट से है, मिट्टी से है। दिल्ली में पोल्यूशन सड़कों में गड्ढों से है। दिल्ली में पोल्यूशन व्हीकल पोल्यूशन जो बसों या गाड़ियों से है। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के धुएं से है। लेकिन 10 सालों में इस सरकार ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि एक वर्ग विशेष को खुश करना है, तो हिंदुओं पे आप पाबंदियां लगा दो। लेकिन जब ये खुद जमानती त्योहार से छूट के आते हैं, तो वो सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। माननीय सरसंघ चालक जी ने निस्संदेह सर्व समाज, या हम कहें कि भारत की जो धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति है, उसके उपलक्ष्य में ये बात कही है। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी जांच भी चल रही है, जानकारी भी प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। और ये लापरवाही है या मशीनरी गड़बड़ी के कारण इस तरह की घटना से हम लोग कैसे सबक लें, आगे बेहतर सावधानी रखें। और जो मजदूर मरे हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, और इनको उचित सहयोग और सहायता भी सरकार करेगी। हर क्षेत्र में डबल है, तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात
कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला। वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख। As my Prime Minister calls it, the Amrit Kal. They will be the one who will be serving the nation, who will be the part of the government when we become a developed nation in 2047. So I think this comes with a huge responsibility as well for them to prove themselves. What we have realized is that they were bursting crackers. One of the crackers was bursted and fallen on the room where crackers were stored. So that is where the explosion has happened. And since people were sitting very close to the room where storage was done, that is how many people have gotten injured. That is what we have understood till now. But more investigation needs to be done. There are many changes that the temple authorities have done, which they have not informed. Firstly, they have not taken license, and they have not informed us that they will be changing this thing. They have not told us about the use of crackers, first of all. Then they have changed the place from where explosives were bursted last time. So that is another thing. And they have not informed anybody that crackers have been stored there, and they have allowed people to sit. So from temple authorities side, we see a lot of lapses. So in that aspect, we are doing a comprehensive inquiry. Additional SP will be heading that inquiry team, and he will be doing a detailed inquiry. And on submission of the report, if there are any lapses, action will be taken, and if reports have to be given, concerned departments reports will be given. How many have been arrested or any under custody? We have 3 people under custody right now. So we are interrogating them, trying to find out more about the what has happened. And अरे देखिए, प्रचार है। नामांकन में हम लोग देवघर गोड्डा आए थे। एक तरफा माहौल है। महागठबंधन की सरकार आपने प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के उसके लिए समर्पित किया है। मैं मानता हूं कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं, इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनती है। और साथ ही ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से
हम आज अवार्ड्स रहे, किस तरह से इनका आयोजन रहा, और एक बार इन पर कुछ बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हर साल हमारे सवाई जयपुर अवार्ड्स हमारे ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, म्यूजियम के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो आज भी जितने भी हमारे ऐसे यहाँ के राजस्थान के जिन्होंने बहुत कुछ किया है, देश का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनको हमने सम्मानित किया है। तो बहुत ही मुझे गर्व होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इनको सम्मानित कर सकूं। जी मैम, यूके और जर्मनी भी जाके आए राइजिंग राजस्थान को लेकर, उस पर भी कुछ बताइए। नहीं, बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे भी जाने का अवसर मिला, पूरा डेलीगेशन था वहाँ, बहुत अच्छे मीटिंग्स हुई, बहुत सारे MOUs हुए, और अब आप देखेंगे राजस्थान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है राजस्थान में। बस ये था कि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने प्रयास नहीं किया था, किए होंगे इससे पहले भी, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं पूरा एक वातावरण बना रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि निवेश बढ़े। और निवेश का मतलब ये है कि इस रूप में नहीं लेता हूं कि जब मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा, उखरी में मुरी दूंगा तो समाज से कितना डरूं। आप हमें बताओ ना, घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा। तो ये स्वाभाविक है, बचपन से मैंने झेले हैं। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जा। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं झारखंड की जनता की सेवा के लिए खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। हेमंत सोरेन जी झारखंड का बेटा है, लगातार यातनाएं दी गई, मारने का प्रयास उन्हें किया गया। शेरनी की तरह मेरी बेटी कल्पना सोरेन उठी, और मुझे लगता है कि आज आम लोगों की आवाज बन चुके हैं। देश के हित में झारखंड महागठबंधन के लिए मैं यहां काम कर रहा हूं, अपने कर्तव्यों का काम कर रहा हूं। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व सरकार की है। मैंने तो DG साहब से कही, मैं IG से कहा, मैं CM साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं, मैंने समय समय पर DG साहब को, 4 SP को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था, मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा, मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। दुख के घड़ी में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम बम्बई भी गए, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। कल
बिहार में जो घटना घटित हो रही है वहां भी जा रहे हैं। तो हमने तो पूर्णिया में भी, पूर्णिया एसपी, कटिहार एसपी, मधेपुरा एसपी, आईजी, डीजी, हमें जब खबर मिली इस नंबर से लोग आए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, हमने नंबर तक दिया। हमने आईजी से 2-2 बार बातचीत की। तब सत्ता में नहीं हूं इसके लिए हमें मर जाना चाहिए या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, गैर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं। तो कम से कम बिहार सरकार इतना बेशरम तो ना हो कि आप, और भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या लेटर लिखा गृह मंत्रालय को? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए, फोन आए उनके, मैंने उस पर बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए, श्रद्धांजलि बाद में दे दी जाएगी। अब नीतीश बाबू तो किसी से मिलते ही नहीं, उन्हें तो मिलने ही नहीं दिया जाता, घेर के रख दिया गया है। नीतीश जी से ये जो जमीन माफिया है, गलत लोग हैं, पप्पू यादव जैसे सच्चाई वाले लोगों को मिलने ही नहीं देते। और उनके चीफ सेक्रेटरी कहते हैं दीपक बाबू की सुरक्षा के लिए आपको नीतीश जी से मिलना होगा। मैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं कह दिया हूं। मैंने तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन किया कि भैया मुझे मारने की साजिश की जा रही है। एनडीए की बैठक हुई है आज सीएम आवास में, 220 सीटें जीतने की बात एनडीए के नेता कह रहे हैं। तो एनडीए के जितने भी घटक दल है, सारे दल के नेता वहां आए थे? पशुपति पारस नहीं आए थे? मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद? नहीं, चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता थे, केंद्रीय नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो नित्यानंद राय। गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए थे? सम्राट चौधरी जी, जय सिन्हा। सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए? तो कोई मतलब मुझे लगता है कि जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से कुछ जो एक ठोस निकल के आना चाहिए था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो है, दावे कर रहा है आरजेडी के लोग की सरकार तो बनना चाहिए, यहाँ भी जीतेंगे बाईपोल में, वहाँ भी जीतेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और उनके जो बड़े नेता, छोटे नेता, दोनों नेता हैं, सबकी आदत रहती है चुनाव के पहले आप लोगों के सामने आना, बड़े बड़े दावे करना, और जिस दिन चुनाव परिणाम आए उस दिन घर का किवाड़ लगा के घर के अंदर चले जाना। तो झारखंड की जनता 23 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएगा तो जो महागठबंधन के लोग हैं जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद है, इन सभी लोगों को घर के दरवाजे के अंदर बंद कर देगा। और इन लोगों की क्या स्थिति है, चुनाव के पहले ही आपस में कैसे लड़ रहे थे वो सब दृश्य सामने आ गया है। इनके कार्यकर्ता भी नीचे वैसे ही लड़ रहे हैं, जमीन पर जैसे टिकट के समय इनके नेता लड़ रहे थे। मतलब एकता नहीं है, एकरूपता नहीं है, विकास की सोच नहीं है। और कुल मिलाकर झारखंड की जनता ने डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है। विकास को देखा है झारखंड की जनता ने, रघुवर दास की सरकार ने जो काम किया था उसको देखा है, और पिछले 5 साल का जो कष्ट है उसको भी झेला है झारखंड की जनता ने। अब उससे बाहर निकलेगी झारखंड की जनता और विकास करने। देश में ओवैसी जैसे लोग अफवाह फैलाते हैं। मैं एक उनका वक्तव्य देख रहा था आपकी अदालत में। ओवैसी जैसे लोग
अफवाह फैलाते हैं, कि भ्रम फैलाते हैं कि मुसलमान 80-90 साल में भी हिंदू के बराबर नहीं होगा। मैं कहता हूं कि हिंदुओं में भ्रम मत फैलाएं। 1951 में आप 2.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख थे। आज सरकारी आंकड़े से आप 17% हो गए, 14% पर 17 लाख हो गए, 17 करोड़ हो गए, और घोषित आंकड़े है कि 25 करोड़ हो गए। हिंदू जो 30 करोड़ था वो बढ़ के 90 करोड़ हुआ। हम 3 गुना, आप 7 गुना बढ़ गए। और आने वाले दिन में आप देखिएगा, नेपाल बॉर्डर, चनपट ले लीजिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण पूरा लेते हुए तो लगभग 800 किलोमीटर होता है। उधर फारबिसगंज, यहां तेजी से अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी को व्यवस्थित किया है पीएफआई ने, और उधर फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर। आने वाले दिन में अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ, एनआरसी नहीं लागू हुआ, अवैध को नहीं निकाला गया, भारत के लिए बड़ा संकट होगा। ज्यादा नहीं, 1-2 दशक बीतते बीतते केवल भारत, बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संकट होगा। और इस देश के लिए खास बंगाल सबसे मुख्य द्वार बन गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बंगाल सहित ऐसे सारे जगहों पे अब जरूरत है, समय की मांग है। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, मैं एक देश का नागरिक भी हूं। लोगों की पीड़ा कह रहा है कि अब देश के अंदर में एनआरसी भी हो और साथ में साथ अवैध लोगों को निकालने की भी प्रक्रिया हो।